Dear students, today I am with you with this poem. This is the last poem of your course this time. Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers. The poet Adrian Rich says recognized as one of the country's most, country means Americas. She is from America. Most distinguished poets and supposed to be the torch bearer of women freedom movement. The things were not the same as we see today in our society or the society in Western countries. The lives of women were crushed under the patriarchal society. Patriarchal means Purush Sattatmak Samaj. So things were not always good there. They did not have freedom. They did not have freedom to freely think, to freely choose for their careers and so on. So the poem is about oppressor and oppressed. Male world here, male world here, patriarch. So this makes patriarchal society. ऐसी सोसाइटी जहां पे पुरुष का प्रभाव ज्यादा है, पुरुष सत्तात्मक समाज उसी को कहते हैं, जहां पर पुरुष ज्यादा पावरफुल है और सारे निर्णय वो लेता है. तो चीजें इतनी आसान यूएस में भी नहीं थी. यहाँ पे सिंबॉलिज्म का खूब यूज किया गया है. अदरवाइज आई वांट टू से दैट एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम इज पैक्ड विद a lot many figure of speeches. So many figure of speeches have been used. When we talk about Aunt Jennifer, another is uncle. Aunt Jennifer represents female world. Female world of not any particular country. She represents women of the whole world. जिनकी कंडीशन सेम है सब जगह. एंड अंकल इज रिप्रेजेंटिंग द मेल, जिसके लिए ये पैट्रियार्ची है. He represents the patriarchal society. Many more symbols you will find when you go through the poem. I want to start. First of all, literary meaning I want to give you. In between, you can understand a lot many things. You will find personification. You will find synecdoche. You will find transferred epithet. You will find pun. You will find even paradox. You will find even irony. You will find a lot many imageries. So the whole poem is packed with a lot many figure of speeches. Poem is actually the poem contains 12 lines. 12 lines means 3 quatrains. One quatrain is of 4 lines. 4 lines of poem is called one quatrain. So it contains 3 quatrains and expose the desolating effects of patriarchy. The struggle for existence, वर्चस्व की कहानी, संघर्ष की कहानी, जीवन जीने की कहानी, and the deep conflicts of bondage. ये फीलिंग कि हम बॉन्डेज की तरह
जो उनका जीवन है, ant feels like a bondage, means this world feels like a bondage under this world. एक ऐसा लगता है जैसे दास्ता के बंधन में जकड़ के रख लिया है. This world doesn't find any type of freedom. तो उसको यहां दिखाने की कोशिश है. जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत बड़ी बात है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो आंट जेनिफर इन दिस पोएम इज टोटली विक्टिमाइज्ड, पूरी तरह से वो विक्टिम है. एंड द ऑल्दो there is, you will not find uncle speaking somewhere or telling something, so you will find complete absence of uncle here. uncle का कहीं जिक्र नहीं है पोएम में, तो represented only by his, और उनको जो रिप्रेजेंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक वेडिंग बैंड से उनको रिप्रेजेंट किया गया है. अंकल की प्रेजेंस अगर कहीं थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, that is the wedding band. Otherwise you will not find the word uncle telling anything, expressing anything, and he becomes the figure of oppression. क्रूरता, प्रहार करने वाला, सामने वाले को क्रश करने वाला, इस तरह का व्यक्तित्व तो अंकल का सामने उभर के आता है. So going to the line, I want to discuss. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. A screen represents here two things. एक स्क्रीन है जिसपे आंट जेनिफर क्या करे, एम्ब्रॉयडरी कर रही है. एम्ब्रॉयडरी किस चीज का? एक टाइगर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. और स्क्रीन रिप्रेजेंट्स द होल लाइफ ऑफ विमेन. औरत का जो संपूर्ण जीवन है. एक दूसरा मीनिंग यहाँ स्क्रीन का ये भी है. तो आंट जेनिफर का जो टाइगर्स है, जिस टाइगर को वो क्रिएट कर रही है, वो टाइगर वो क्या करता है? प्रांस यानी डांस या उछल कूद, आप जो भी कह सकते हैं. ये उछल कूद सामने दिखता है. वर्ड का मीनिंग ये है कि उछल कूद मचाता है, लेकिन यहां ये है कि पूरे विमेन फोक के पूरे लाइफ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है. So the first stanza of the poem highlights Aunt Jennifer's fears. कैसे देखिए, इसके बाद कहते हैं ब्राइट टोपाज denizens of a world of green. इसमें इमेजरी दिखेगी, विजुअल इमेजरी अगर आप खोजने की कोशिश कीजिए. ये जो जानवर हैं, ये जो टाइगर्स जिसको वो क्रिएट कर रही हैं, वो ब्राइट, काफी चमकीला, तेज, चटक पीले रंग वाला, जो उसकी पहचान होती है, इसकी बॉडी की पहचान होती है. सो ब्राइट टोपाज denizens of a world of green, यानी कि जंगल का निवासी है. They do not fear the man beneath the tree. और पेड़ के नीचे जो और लोग सब भी बनाए गए हैं, बिल्कुल भी उनसे डरता नहीं है, कोई डर भय नहीं है. They pace in sleek chivalric certainty. और एक शानदार चाल के साथ वो चलता जाता है. यहाँ पर दो थोड़ा डीपली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक मीनिंग यहाँ निकल के आता है. काइवलरिक वर्ड जो है, ये ओल्ड टर्म है. काइवलरिक, CHIVALRIC, काइवलरिक. ये ओल्ड टर्म यूज किया जाता था मोरल कोड्स ऑफ नाइट्स. गोल्डन टाइम्स में मोरल कोड्स ऑफ नाइट्स. नाइट्स जो यूरोपियन जमींदारी प्रथा जब थी यूरोप पे, तो वहां एक इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था. ये काफी उसके लिए मोरल कोड्स के लिए जाना जाता था. यहाँ पे टाइगर के सेंस में लैक ऑफ फियर के रूप में हम देखेंगे, यानी वो निडर होके जो कदम एक निडर भाव से वो चलता जाता है. एक यहाँ पे आप देखेंगे तो आयरनी भी आपको दिखेगी, इस लाइन में आयरनी भी दिखती है कि जो ब्रूटल टाइगर्स है, जंगली हिंसक जो टाइगर्स है, उसको यहाँ पर काइवलरिक कहा गया है.
द वर्ल्ड काइवलिक हैज बीन यूज्ड। और जो कल्चर्ड मैन है या नहीं है तो उसे होना चाहिए, उसे कल्चर्ड होना चाहिए, उसे सभ्य होना चाहिए, उसको यहाँ पे किस रूप में दिखाया गया? ऑपरेशन है। वो ऑपरेस करता है, दबाने की कोशिश करता है, उसको तंग करने की कोशिश करता है, उसको परेशान करने की कोशिश करता है, उसके लिए किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं देने की बात सोचता है। So this is the first stanza. Now we are coming to second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her. Literary meaning ये है कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और उस टेपेस्ट्री पे जब वो टाइगर को बना रही है वूल के थ्रू, अलग अलग रंगों के वूल से वो टाइगर को बनाने की कोशिश कर रही है, जो उनके सेल्फ के बिल्कुल विपरीत है। खुद का जो उनका सेल्फ है वो डरा सहमा हुआ सा, क्रस्ड अंडर द हैंड्स ऑफ अंकल, उनके हाथों के नीचे वो क्रस्ट फील कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में उनका एक व्यक्तित्व तो सामने आता है। सी वांट्स टू बी फ्री, सी वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, लाइक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। सी वांट्स टू लीड एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्र हो बिल्कुल हर तरह से, एक टाइगर की तरह निर्भीक जीवन जीना चाहती है। एक और बात जो यहां पर आती है कि यू कैन क्रस, आप क्रस किसको कर सकते हैं? विमेन के फॉर्म्स को दबा सकते हैं, उसके बॉडी को आप कब्जा कर सकते हैं, लेकिन यू कांट सप्रेस या क्रस हर माइंड। वो माइंड में क्या सोचती है, अपनी सोच से वो बहुत बदलाव रखने की क्षमता रखती है। अपनी सोच से वो पता नहीं क्या क्रिएट कर सकती है, और वो उसका वो क्रिएशन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, चाहे वो पेन के माध्यम से हो, चाहे चित्र के माध्यम से हो, कुछ भी अपने स्पीच के माध्यम से हो, एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो विमेन के फॉर्म को आप क्रस कर सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं, बट यू कांट क्रस हर थिंकिंग। उसके माइंड को आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो वूल से फरफराती हुई, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। देखिए कि कितनी मजबूर हो चुकी है वो, कि जो आइवरी निडल है जो बहुत मुश्किल नहीं है खींचना, लेकिन उसको भी वो इतना सप्रेस हो चुकी है कि मेल डोमिनेशन के अंदर, मैंने पुरुष समाज के ने इतना उसको सप्रेस कर दिया है, मजबूर कर दिया है, परेशान कर दिया है कि आंट जेनिफर हैज बिकम ए नर्वस रैक। वो इतनी मतलब बुरी तरह से नर्वस हो गई है कि सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल द, कि उनको वो आइवरी निडल भी पुल करना, खींचना मुश्किल हो रहा है। She even can't pull that ivory needles through the tapestry because of we can say that here her mental suppression has been implied, कि मानसिक रूप से वो इतना ज्यादा क्रस फील कर रही है कि फिजिकल वीकनेस से कहीं ज्यादा वो मेंटल वीकनेस को सफर कर रही है। और देखिए यहाँ पर अब अंकल का कैसे वो मिलता है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो बैंड मतलब यहां पर हम अंगूठी के लिए, रिंग के लिए कहेंगे कि बिफोर द मैरिज इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी रिंग सेरेमनी हैपेंस, दैट इज सपोज्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैप्पी लाइफ। लेकिन ये आंट जेनिफर के लिए ये हैप्पी लाइफ नहीं हो गया, उसका वो वेट महसूस कर रही है। इस अंकल के जो वेडिंग बैंड है उसका
वेट अपने जीवन में इतना ज्यादा महसूस कर रही हैं कि ये मेल अथॉरिटी और पावर का संकेत है। ये जो वेडिंग बैंड है यहाँ पे ये सिंबॉलिक है मेल अथॉरिटी और पावर का। मैट्रिमोनी बाइंड्स, यानी जो शादी का बंधन होता है ये बांध देता है, बाइंड्स द वुमन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। लाइकवाइज आंट जेनिफर इज ट्रैप, यही कारण है कि आंट जेनिफर भी यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है, पूरी तरह से इस जेंडर ऑपरेशन का शिकार हो चुकी है। And feels herself burdened by the authority of her husband, और burdened फील कर रही है। जो एक शादी का बंधन, जो एक प्यारा सा बंधन उनको महसूस होता है, वो महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि वो अब उसे कैसा फील कर रही है, जैसे एक बर्डन हो, एक भार हो, उसको वो ढो रही है। उस मैट्रिमोनी के भार को वो ढो रही है, बहन कर रही है। वो ऐसा लगता है ये वेडिंग बैंड उनके उंगलियों में सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, उनके हाथों को बुरी तरह से जकड़ दिया है। सो इन दिस सेकंड स्टेंजा यू फील, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा था कि एक आंट जेनिफर के फियर को दिखाने की कोशिश की गई थी, तो सेकंड जो स्टेंजा है ये इंप्लाइड स्लेवरी दिखा रहा है, जबरदस्ती का उन पर एक दास्ता थोपा जा रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है, उनको अपने पावर में बांधने की कोशिश की जा रही है या बांध दिया गया, जहां पे उनका व्यक्तित्व कोई मतलब नहीं रखता है, उनकी सोच कोई मतलब नहीं रखती है, समानता कोई मतलब नहीं रखती है। शी इज नॉट गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। जो पैट्रियार्ची है वही सब कुछ है, उसी की सोच सर्वोपरि है। तो शी फील्स हरसेल्फ बर्डन्ड। ये मैरिज रिलेशनशिप जो है उनके लिए एक बर्डन की तरह। आगे कहते हैं कि स्थिति को और ज्यादा, मतलब इस दास्ता की स्थिति को और ज्यादा वो जब बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इन द फाइनल स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड, लगता है वो मर जाने के बाद भी, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, कि उनकी ये भयभीत। अब देखिए टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का, when a certain adjective or adverb is not used for actual happenings or actual word, but it is transferred to something other. So then here terrified hands, हाथ भयभीत नहीं होगा, भय का संबंध हमारे मनोमस्तिष्क है, जो चेहरे पर दिखेगा भाव, लेकिन उसको क्या कहा गया है कि वो उसको उठा के हाथ पर ट्रांसफर किया गया, उस फीलिंग को हाथ पर ट्रांसफर किया गया। तो टेरिफाइड हैंड्स पर यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच बनता है। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी ऐसा लगता है उनका जो भयभीत के भय से कांपता हुआ जो ये हाथ है, शायद अभी भी रिंग्ड। अब रिंग्ड वर्ड में देखिए पन का प्रयोग, रिंग में पन का प्रयोग। पन का प्रयोग दो सेंस में, जब किसी एक वर्ड का दो सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो ये रिंग एक तो हुआ कि जो रिंग वो पहन रखा है, वो घेर रखा है ना। रिंग गोल होता है किसी चीज पे, जब हम उंगलियों में डालते क्या करता है, चारों ओर से हमें घेर लेता है। तो शी इज ऑल्सो रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, कि हाउस होल्ड चोर्स में वो पूरी तरह से जकड़ी हुई, जिसमें उनको मतलब मास्टर कर दिया गया था। शी वाज मास्टर्ड बाय। देखिए ये यहाँ पे ये आयरनी है कि वो घरेलू काम में उनको मतलब पूरी तरह से मतलब घरेलू काम में इतनी जकड़ गई थी, इतना ज्यादा वो मतलब इतना ज्यादा उन्हें वो काम करना पड़ रहा था, उसी से वो घिरी हुई है।
हमेशा अपने आप को वो उसी अंदाज में पाती हैं, उसी स्थिति में अपने आप को पाती हैं, है ना। रिंग विद ऑडियंस, तो रिंग शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक हो गया यही आपका कि एक्चुअली ये रिंग जो किसी चीज को गोल उसमें घेर लेता है, और दूसरा है कि घरेलू काम के बीच में अपने आप को घिरा हुआ वो पा रही है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन जो उनका खुद का क्रिएशन है ये टाइगर। देखिए क्रिएटिव पावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिव पावर है वो दो के ही पास होता है, इधर मदर यानी कि विमेन को, और दी अर्थ, इन्हीं में ये क्रिएशन है। तो जो खुद उनका क्रिएशन है, जो टाइगर खुद उनका क्रिएशन है, वो टाइगर्स ही उनके ही जीवन को प्रभावित कर रहा है, उनके ही जीवन को बुरी तरह से मतलब परेशानी में डाल रहा है, उन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आफ्टर हर डेथ द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जिस टाइगर्स को उन्होंने खुद क्रिएट किया था उस टाइगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट टाइगर विल गो ऑन प्रांसिंग, वो ऐसे ही उछल कूद मचाते हुए, ऐसे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि वो मतलब ये यहाँ पर व्यंग भी है, कहिए कि ये मेल वर्ल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मेल वर्ल्ड पे कोई मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है, उसकी सोच में कोई बड़ी परिवर्तन नहीं आने वाली है, उसकी सोच यूं ही बनी रहेगी, चलती जाएगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, जिस टाइगर को उन्होंने क्रिएट किया है पैनल पे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उसी तरह से अनअफ्रेड होके और उछल कूद मचाता हुआ, प्राउड फीलिंग, प्राइड के साथ, एक गर्व के साथ वो इसी तरह के फीलिंग को लेके चलता जाएगा। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड मोर इन नेक्स्ट वीडियोस, guys and girls. Thank you very much for joining me, and